بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو علم سٹوری ٹی وی۔ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے جوانا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ عمران نے چیتے کی طرح اپنی جگہ سے جست لگائی اور فضا میں گھومتا ہوا دونوں ہاتھوں کے بل زمین پر آ رہا، مگر زمین پر آتے ہی وہ اپنے ساتھ جوانا کو بھی لے آیا تھا، کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں نے فضا میں گھومتے ہوئے جوانا کی گردن میں شکنجا جکڑ لیا تھا۔ چنانچہ ایک جھٹکے سے جوانا بھی اس کی ٹانگوں میں کسا ہوا زمین پر آ رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے اپنے جسم کو موڑا اور جوانا کی گردن میں بل پڑ گیا۔ عمران ایک بار پھر اچھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ جوانا اٹھتا، عمران تیزی سے جھکا اور دوسرے ہی لمحے جو ہیکل جوانا اس کے دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ عمران کا ایک ہاتھ جوانا کی گردن کے گرد کسا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگوں کے گرد تھا۔ پھر عمران نے اپنے ہاتھوں کو ذرا سا بل دے کر جھکایا تو جوانا کا جسم پشت کے بل اس کی پشت سے جا ٹکرایا اور اس کے ساتھ عمران نے دونوں ہاتھوں کو پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ جوانا کے حلق سے تیز چیخ ابھری۔ عمران کے ہاتھوں کے زوردار جھٹکے سے جوانا کا بھاری بھرکم جسم کمان کی طرح مڑتا چلا گیا تھا۔ پھر ایک کڑک کی آواز فضا میں گونجی اور عمران نے جوانا کو یوں زمین پر اچھال دیا جیسے مزدور بھاری بوری کو زمین پر پٹخ دیا کرتے ہیں۔ جوانا کا جسم بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ پیر اس کے بس میں نہ تھے۔ عمران نے انتہائی خوفناک داؤ استعمال کر کے اس کے ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ڈسلوکیٹ کر دیا تھا۔ اب جوانا بیکار ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اب حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جوزف اسے گھسیٹ کر اندر لے چلو، بلو روم میں ڈال دو، عمران نے عمارت کے برآمدے میں موجود جوزف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور جوزف تیزی سے بھاگتا ہوا آگے آیا۔ پھر اس نے زمین پر پڑے ہوئے جوانا کو ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا عمارت کے اندر لیتا چلا گیا۔ جوانا کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھی، مگر ظاہر ہے کہ جوزف اس کی کب پرواہ کرتا تھا۔ کیا حال ہے ٹائیگر؟ عمران نے آگے بڑھ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں شرمندہ ہوں باس، بس اچانک ہی میں مار کھا گیا۔ ٹائیگر نے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم بڑے اچھے طریقے سے لڑے ہو، خاص طور پر تم نے اس وقت کمال کر دیا تھا جب جوانا نے پیٹ سے پکڑ کر تمہاری دونوں ٹانگوں کو اپنے پیروں میں جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس وقت تم ذرا بھی چوک جاتے تو وہ ایک ہی جھٹکے سے تمہاری دونوں ٹانگیں تمہارے جسم سے الگ کر سکتا تھا۔ عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ باس، ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی اپنی موت سامنے دکھائی دی تھی۔ ٹائیگر نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یہ شخص انتہائی خوفناک لڑاکا اور مارشل آرٹ کا ماہر ہے اور بے پناہ طاقتور بھی ہے۔ ہر آدمی کا اس سے لڑنا ناممکن ہے۔ مجھے خود اس پر قابو کرنے کے لیے دانتوں پسینہ آ گیا تھا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کا رنگ بحال ہونے لگا۔ ظاہر ہے جس کی تعریف عمران سے ہو، اس کے مقابلے میں مار کھا جانا انوکھی بات نہ تھی۔ اچھا ٹائیگر سنو، تم نے اس غیر ملکی کو اچھی طرح سے دیکھا ہے جس نے مجھے کار سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اب تم اسے تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے میک اپ کر لیا ہو، مگر تم اس کی چال سے اس کو پہچان سکتے ہو۔ وہ دائیں ایڑی پر زور دے کر ذرا چلتا ہے، اسے تلاش کر کے مجھے اطلاع دو، عمران نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جی بہتر باس، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا عمارت کے اندر کی طرف چلا گیا، جبکہ ٹائیگر کا رخ اس کے پھاٹک کی طرف تھا۔ سلیمان کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے اپنے آپ کو رسیوں میں بری طرح جکڑا ہوا پایا۔ منہ میں اس کے رومال ٹھونسا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا، مگر وہ کب تک اس طرح بندہ پڑا رہتا؟ وہ عمران کی عادت جانتا تھا، اگر وہ آ جائے تو چند لمحوں میں آ جائے، اگر نہ آئے تو ہفتوں وہ فلیٹ کا رخ نہیں کرتا تھا۔ پھر عمران کو سلیمان کی واپسی کا علم بھی نہیں تھا۔ سلیمان جب واپس آیا تو فلیٹ کا دروازہ لاک تھا، کیونکہ سلیمان کے پاس ایک چابی ہر وقت رہتی تھی، اس لیے اطمینان سے وہ دروازہ کھول کر اس کے اندر آ گیا تھا۔ مگر ابھی اسے آئے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اب سلیمان سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان رسیوں سے پیچھا چھڑانا چاہیے، مگر اسے کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آنے والے نے کچھ اس بری طرح سے اس کو باندھا تھا کہ سلیمان کے لیے حرکت کرنا بھی مشکل تھا۔ آخر سوچ کر سلیمان نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح لڑکتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل جائے گا، اس طرح کسی کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے اپنے آپ کو لڑکھانے کی کوشش شروع کر دی، مگر اس کے جسم کا کچھ اس انداز میں باندھا گیا تھا کہ اسے
एक गोल दायरे में ही सिर्फ हरकत दे सकता था। सुलेमान ने कोशिश की थी, मगर जल्दी उसे एहसास हुआ कि शायद फ्लैट दरवाजे तक पहुंचने में उसे कई घंटे लग जाएं, मगर उसने हिम्मत ना हारी और कोशिश जारी रखी। जबरदस्त कोशिशों और काफी देर तक लुढ़कने के बाद आखिरकार वो दरवाजे के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। मगर अब मसला था कि दरवाजा खोला कैसे जाए। वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, मगर इसके बावजूद उसे खोलने के लिए हाथ की जरूरत थी। सुलेमान के हाथ खुले हुए ना थे। उसने सर मार मार कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा न खुला, बल्कि दरवाजा लॉक होने को था। फिर सुलेमान ने अपने जिस्म के दायरे की सूरत में घुमाकर बंधे हुए पैरों से दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश की। फिर वो चंद इंच उसको खोलने में कामयाब हो गया, मगर इसके बावजूद दरवाजा इतना था कि वहां से वो निकल नहीं सकता था। चुनाचे इसने तेजी से एक बार फिर रुख को बदला और कांधों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अभी कोशिश में मसरूफ ही था कि अचानक दरवाजा धमाके से खुला और एक मोटी ताजी बिल्ली कूद कर सलमान के जिस्म को फुलांगती हुई अंदर आ गई। अब रास्ता खुल चुका था, इसलिए सलमान ने बिल्ली की तरफ तवज्जो करने की बजाय बाहर की तरफ लुढ़कना शुरू कर दिया। फिर वो फ्लैट के खुले दरवाजे से बाहर निकलकर राहदारी में आ गया, मगर अब एक और टेढ़ा मसला सामने था। हर फ्लैट का रास्ता अलग अलग था और सलमान के सामने दो ही सूरतें थी, या तो वो सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे सड़क पर जाकर गिरे, इस तरह सड़क पर चलने वालों को उसकी तरफ मुतवज्जो होना पड़ता था, या फिर राहदारी में पड़ा किसी के आने का इंतजार करे। मगर दोनों सूरतों में सलमान के लिए तशवीश थी, क्योंकि राहदारी में ठहरे रहना तो ऐसा ही था जैसे फ्लैट के अंदर पड़ा रहना, और सीढ़ियों से लुढ़कने का मतलब था जब वो नीचे सड़क पर पहुंचता तो उसकी हड्डियों का चूरा हो चुका होता। अभी सुलेमान सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक कुत्ता तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर उसकी तरफ आ गया। उसके गले में मौजूद पट्टे को देखकर सलमान समझ गया कि वो किसी का पालतू कुत्ता है। कुत्ते के बंधे होने से सलमान के जिस्म को सूंघा और उसी लम्हे दरवाजे में उस बिल्ली की झलक नजर आ गई और वो उछलता हुआ उसी तरफ को बढ़ गया। वापस आओ। अचानक सीढ़ियों के नीचे से किसी की आवाज सुनाई दी। कुत्ता शायद उस आदमी का था, मगर कुत्ता तो बिल्ली को देखकर जैसे पागल हो गया था। वो उसके पीछे भागता हुआ फ्लैट में दाखिल हो चुका था। सुलेमान ने महसूस किया कि फ्लैट के अंदर धूम सी मची हुई है। कुत्ते के भौंकने और भागने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर सीढ़ियों पर कदमों की तेज तेज आवाजें उभरने लगी। शायद कुत्ते को ले जाने के लिए उसका मालिक खुद ऊपर आ रहा था। अरे ये क्या! जैसे ही वो नौजवान ऊपर चढ़ा, सामने बंधे हुए सलमान को देखकर वो चौंक पड़ा। सुलेमान ने उसे देखकर तेजी से दाएं बाएं सर पटकना शुरू कर दिया और नौजवान ने झुककर उसके मुंह से पट्टी हटाई। फिर उसके मुंह में ठुसा हुआ रुमाल निकाला और उसको एक तवील सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मुझे खोलो, जल्दी करो, सुलेमान ने हाँफते हुए कहा। मगर तुम्हें किसने बांध रखा है? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम खोलो तो सही, बंदे बंदे मेरा जिस्म सुन्न हो चुका है, सुलेमान ने कहा और नौजवान ने पलटकर उसकी रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद सलमान का जिस्म रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो चुका था। मुसलसल बंधे रहने की वजह से उसका जिस्म सुन्न भी था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने जिस्म को हरकत देना शुरू कर दी। फ्लैट के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। शायद बिल्ली कहीं पर छुप गई थी। कुत्ता उसको तलाश करने के लिए वहां पर खड़ा मुसलसल भौंक रहा था। अपने कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो, सारे फर्नीचर का सत्यानाश दे मारा है। सुलेमान ने शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा नौजवान को डांटते हुए कहा। वो अच्छा, पता नहीं मोती को क्या हो गया है, नौजवान ने शर्मिंदा लहजे में कहा और फिर तेजी से दरवाजा फलांग कर फ्लैट में दाखिल हो गया। सुलेमान अब उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया था। फिर इसने कदमों को हरकत दी ताकि जिस्म का दौरान खून पूरी तरह से बहाल हो सके। अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ और सलमान को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे गेंद की तरह उठाकर सड़क की तरफ उछाल दिया हो। धमाका इतना शदीद था कि उसके आवाज यकलख्त जाते रहे थे और जब उसे होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द लोगों को चीखने और भागने दौड़ने को देखा तो वो सड़क के एक तरफ बने हुए पार्क के गिर्द मौजूद बाढ़ के ऊपर गिरा हुआ था। शायद बाढ़ पर गिरने की वजह से वो बच गया था, वरना इतनी बुलंदी से गिरने के बाद उसकी हड्डियां सलामत न रहती। मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने उसका फ्लैट मलबे का ढेर बना हुआ था। लोग तेजी से मलबा हटाने में मसरूफ थे। पूरा फ्लैट ही बैठ गया था और फ्लैट के नीचे मौजूद गैराजों को भी अपने साथ जमीन पर ले गिरा था।
मलबे में अभी तक चीखों और कराहों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसे लम्हे पुलिस गाड़ियों और फायर ब्रिगेड के सायरनों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर देखते ही देखते फायर ब्रिगेड के अमले ने फ्लैट को घेर लिया और लोगों की मदद से इंतहाई तेज़ी से मलबा हटाने की कोशिश करने लगा। ट्रैफिक सड़क पर जाम हो चुकी थी और लोगों का बेपनाह हजूम फ्लैट के इर्द गिर्द इकट्ठा था। सुलेमान इनके दरमियान यूं खड़ा था और आंखें फाड़े तबाहशुदा फ्लैट के मलबे को देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। ये सोचकर ही उसके मेंदे में टेंशन हो रही थी, अगर वो कोशिश करके फ्लैट से बाहर ना निकल आता और वो नौजवान उसे खोलता ना तो उस वक्त उसका जिस्म हजारों टुकड़ों में तब्दील हुआ पड़ता। उसी लम्हे उसे नौजवान का ख्याल आया जो कुत्ते को पकड़ने के लिए फ्लैट में दाखिल हुआ था। उसके फ्लैट में जाने के चंद लम्हे बाद ही खौफनाक धमाका हुआ था। साफ ज़ाहिर है कि नौजवान के जिस्म के चीथड़े उड़ गए होंगे। बेचारा नौजवान उसे मौत खींचकर इस फ्लैट में ले आई थी। सुलेमान ने दिली दिल में अफसोस करते हुए कहा, उसे अब क्या मालूम था कि धमाका हुआ ही इस नौजवान की वजह से था। कुत्ते को पकड़ने के दौरान उसका पैर अंदरूनी कमरे के सामने रखे हुए पायदान पर पड़ा था और पायदान के नीचे अल्बर्ट का रखा हुआ बम एक खौफनाक धमाके से फट चुका था। बहरहाल ये बात तय थी कि नौजवान ने अपनी कुर्बानी देकर सुलेमान और इमरान को इस वक्त बचा लिया था, वरना हो सकता था कि सुलेमान रस्सियों से आज़ाद होकर फ्लैट पर वापस जाता और इसका पैर उसी बम पर पड़ जाता। थोड़ी देर के बाद लाशें और जख्मी निकलने शुरू हो चुके थे और एम्बुलेंस गाड़ियां हरकत में आ गई थीं। सलमान काफ़ी देर तक वहां खड़ा ये मनाजर देखता रहा, फिर वो वापस मुड़ा और हजूम से निकलता हुआ एक तरफ को बढ़ता चला गया। अफरा तफरी के आलम की वजह से किसी को मालूम नहीं हो सका कि सलमान का इस फ्लैट से क्या ताल्लुक है। उसने भी जानबूझकर अपना तारुफ नहीं कराया था, क्योंकि फिर इसे पुलिस को तफसीली बयान देना पड़ता। वो नहीं चाहता था कि इमरान को बताए बगैर वो पुलिस को किसी किस्म का बयान दे। उसने हजूम से हटकर एक गली का रुख कर लिया था, फिर इस गली को क्रॉस करके एक सड़क पर आ गया। चंद लम्हों के बाद एक खाली टैक्सी मिल गई और ड्राइवर को राना हाउस का पता बताकर वो पिछली नशिस्त पर ढेर हो गया। उसके दिमाग में अभी तक धमाके हो रहे थे। जिस्म मौत के हाथों बचकर निकल आने पर अभी तक उसे सुनसना रहा था। उसने राना हाउस का रुख किया और फ्लैट के अलावा इमरान का मुश्किल ठिकाना वही था। उसे मालूम था कि अव्वल तो इमरान वहां पर मिल जाएगा और अगर ना भी मिला तो कम अज कम जोसेफ तो वहीं पर मौजूद होगा और उसके जरिए वो कहीं ना कहीं उस इमरान को तलाश कर लेगा और ढूंढ निकालेगा। टैक्सी खासी तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई राना हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। सुलेमान अब सोच रहा था कि वो इमरान को अपने बांधे जाने और फिर बच निकलने के मुतल्लिक तफसीलात बताएगा। राशील बड़े मुतमिन अंदाज में एक्सीलेटर पर दबाव डालकर गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जा रहा था। उसका शिकार मफलूज हालत में सड़क के दरमियान में पड़ा हुआ था। राशील सोच रहा था कि अब चंद ही लम्हों के बाद वो उसको रेजा रेजा कर देगा। इसके बाद $20 लाख उसकी जेब में होंगे। मगर अभी कार इमरान से 10 फुट दूरी पे थी कि अचानक एक धमाका सा हुआ। फिर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई कार का रुख अचानक मुड़ गया और कार लड़खड़ाती हुई बाएं तरफ को मुड़ती चली गई। अचानक धमाके और गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ने से राशील एक लम्हे के लिए तो वो खिला गया था, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने आप को काबू कर लिया और स्टीयरिंग पर दाएं तरफ पूरा जोर डाल दिया ताकि गाड़ी उलट ना जाए। गाड़ी एक तरफ को मुड़ी थी, वहां दरख्तों का एक जखीरा था और गाड़ी का रुख उस जखीरे की तरफ था। राशील ने बड़ी मुश्किल से अपने होशो हवास को सलामत रखा हुआ था। किसी दरख्त से टकराने से गाड़ी को भी रोका और फिर जैसे ही कार की रफ्तार कदरे कंट्रोल हुई, उसने बड़ी फुर्ती से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका और दूसरे ही लम्हे दूसरी सीट पर पड़ा हुआ कैमरा उठाए वो तेजी से नीचे उतरा और फिर सामने तवील झाड़ियों में भागता चला गया। ऐन आखिरी मौका पर गोली के धमाके और कार का रुख मुड़ जाने की बिना पर वो समझ गया था कि इमरान के हमदर्दान टपके हैं और इनका वार नाकाम हो चुका है। इसलिए बजाय वहां रुकने के वो हत्तल वसा तेजी से भागता हुआ सड़क से दूर होता गया। उसे अफसोस तो जरूर था कि ऐन मौका मंजिल पर दूर हो चुका था, मगर वो अपनी जगह पर मुतमईन भी था कि अगर वो इमरान के साथियों के हाथ ना आया तो उसे दूसरा मौका भी ढूंढने का मौका मिल जाएगा। झाड़ियों में भागते भागते वो जल्दी एक रहायशी कॉलोनी की पुष्ट पर जा पहुंचा था। फिर इस कॉलोनी की गलियों में से होता हुआ वो मेन रोड की तरफ बढ़ता चला गया। कॉलोनी के चौक पर पहुंचकर उसे खाली टैक्सी मिल गई और इसने ड्राइवर को अपने होटल का पता बताकर पिछली नशिस्त संभाल ली थी।
टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ी और अब वो इत्मीनान होने पर सोचने लगा कि आखिर ये धमाका ऐन मौका पर किस तरह से हुआ। इमरान को बचाने के लिए कौन आ पहुंचा था, जबकि सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी हुई थी। उसे आदमी चिड़िया का भी बच्चा कहीं पर नजर नहीं आया था, मगर इसके बावजूद ये बात यकीनी थी कि कोई शख्स वहां पर मौजूद था। उसने ऐन आखिरी लम्हात में गाड़ी का रुख मोड़कर इमरान को यकीनी मौत से बचा लिया था। ये बात तो किसी बच्चे की समझ में भी आ सकती थी कि गाड़ी का रुख मोड़ने वाले ने यकीनन उसे भी देख लिया होगा और फिर उसने इमरान की शक्ल अच्छी तरह देख ली थी, इसलिए ज़ाहिर है कि उसे मेकअप में रहना होगा। चुनाचे होटल पहुंचते ही सबसे पहले उसने ये काम किया कि खाली कमरे को अपना बैग जो था वो निकाला और इसमें होटल से थोड़ी दूर वाक़ई एक और होटल में कमरा बुक करवा लिया था। मगर इसी होटल के काउंटर पर पहुंचने से पहले एक कैफ़े के टॉयलेट में घुसकर अपना हुलिया तब्दील करने लगा। होटल के कमरे में बैग रखने के बाद वो काफ़ी देर तक नए मंसूबे पर सोचो विचार करता रहा। फिर उसने यही फैसला किया कि इमरान के फ्लैट की निगरानी करनी चाहिए और फिर जैसे ही इमरान वहां पहुंचे वो मौका देखकर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उस पर फायर कर दे और खुद वहां से निकल जाए। राशील की आदत थी कि जब एक बार काम पर निकल खड़ा होता था फिर वक्त ज़ाय करना उसके लिए गुनाह होता था। वो शिकार पर मुसलसल ताबड़तोड़ हमले करते था और अमूमन उसे कामयाबी ही हासिल होती थी, क्योंकि शिकार आखिर कब तक मुसलसल हमलों से बच सकता था। चुनाचे इस बार उसने कैमरा वहीं कमरे में छोड़ा, लिबास बदला और साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर बैग से निकालकर अपनी जेब में डाला और होटल से बाहर निकल आया। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो होटल में वापस उस वक्त आएगा जब उसे अपने मकसद में कामयाबी हो जाएगी। होटल से निकलते ही उसने टैक्सी एंगेज की और उसे कंग रोड का पता बताकर पिछली नशिस्त पर बैठता चला गया और फिर ड्राइवर को चलने का कह दिया। उसने फ्लैट का हदूद अरबा पहले ही देख लिया था। फ्लैट के सामने एक रेस्टोरेंट था, उसके दरवाजे पर शीशे लगे हुए थे। उसने यही प्रोग्राम बनाया था कि वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाए और फ्लैट की निगरानी करता रहे। जैसे ही इमरान अपने फ्लैट में दाखिल हो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाए। इससे पहले कि इमरान संभलता उसने इमरान पर गोलियों की बौछार कर देनी थी। थोड़ी देर के बाद उसने टैक्सी रेस्टोरेंट के सामने रखवाई और फिर ड्राइवर को किराया देकर वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुका था। अब ये इसकी खुशकिस्मती थी कि इसे एक ऐसी खाली मेज मिल गई थी जिसके पीछे बैठकर वो इत्मीनान से फ्लैट की निगरानी कर सकता था। उसने कुर्सी संभलते ही सबसे पहले खाने का ऑर्डर दिया और फिर खाना खाने के दौरान भी उसकी नज़रें मुसलसल फ्लैट की निगरानी में मसरूफ थी। खाना खाने के बाद उसने कॉफ़ी मंगवाई और आराम से चुस्कियां लेकर पीने में मसरूफ हो गया। अभी उसने आधी प्याली ही ख़त्म की थी, उसने एक नौजवान को फ्लैट से सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। उसकी नज़रें इस नौजवान पर जम गई। वो नौजवान चाल ढाल उम्र कदो कामत गर्ज ये किसी तौर पर भी इमरान ना लगता था, इसलिए वो खामोशी से बैठा चाय को पीता रहा। काफ़ी की प्याली ख़त्म करके उसने वेटर को बिल लाने को कहा। फिर बिल अदा करने के बाद वो कुर्सी उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। नौजवान को ऊपर चढ़ते हुए 10 मिनट के करीब हो चुके थे। राशील सोच रहा था कि आखिर वो नौजवान कौन है और क्या कर रहा है। अभी वो सड़क के किनारे खड़ा यही सोच रहा था कि फ्लैट के ऊपर जाकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाए और यहीं रुक कर फिलहाल निगरानी करे कि इत्तफाक करे कि एक खौफनाक धमाका हुआ। और धमाका होते ही उसने फ्लाइट को उड़ते हुए देखा और फिर वो शख्स घरेलू मुलाजम जैसी चीज़ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंच चुके थे। राशील धमाका होते ही ये बात समझ गया कि धमाका अल्बर्ट की कोशिशों का नतीजा है, क्योंकि ऐसे कामों में अल्बर्ट माहिर था। मगर इस आदमी के इत्मीनान से राशील ये समझ लिया था कि कम से कम इमरान धमाके के वक्त फ्लैट पर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर वो फ्लैट में होता तो कम से कम ये शख्स फितरी तौर पर कभी इत्मीनान से न रहता। अब मसला था कि इमरान आखिर कहाँ पर है। अब तो फ्लैट में वापसी भी नामुमकिन हो चुकी थी। राशील इसी फ्लैट के अलावा और कोई जगह जानता भी न था। चुनाचे उसने सोच कर यही फैसला किया कि इस शख्स की निगरानी करनी होगी। यकीनन फ्लैट की तबाही की खबर इमरान तक तो पहुंचाएगा। और अचानक वो शख्स तेज कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ निकलने लगा। राशील भी उसके पीछे था। आखिर बाहर आकर वो शख्स एक गली में घुस गया और जब गली का किनारा आया तो एक सड़क पर उसने उस शख्स को टैक्सी को रोकते हुए देखा। राशील ने तेजी से इधर उधर अपनी निगाहों को घुमाया और फिर एक बिल्डिंग के सामने
एक मोटरसाइकिल खड़ा नजर आ गया। राशील ने इस मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल के करीब पहुंचकर उसने देखा कि यह लॉक था। उसी लम्हे बैक वक्त दो बातें ज़हूर पजीर हुई। एक शख्स, खाली टैक्सी मिल गई और उसी लम्हे मोटरसाइकिल का मालिक भी लॉक खोला और अंगेज में चाबियां घुमा रहा था कि राशील अचानक पूरी कुव्वत से उस पर झपट पड़ा और उसके गिरते ही उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और दूसरे ही लम्हे उसने मोटरसाइकिल को ऑन करके उस पर मजबूत करके आगे बढ़ा दिया था। मोटरसाइकिल शोर मचाता हुआ से निकल पड़ा। मालिक पीछे चीख रहा था, मगर राशील अब उसे कहां मोटरसाइकिल तक पहुंचने देता। वो पूरी रफ्तार से मोटरसाइकिल को उड़ाता हुआ टैक्सी के पीछे चला गया। जब इस टैक्सी के करीब पहुंचकर उसने आदमी को पिछली सीट पर बैठे हुए देखा तो इत्मीनान से टैक्सी के ताकुब में लग गया। वो खासा फासला देकर टैक्सी का ताकुब कर रहा था ताकि वो ताकब से आगाह ना हो सके। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई एक बड़ी सड़क पर पहुंच चुकी थी। खासी बड़ी इमारत के गेट पर जाकर रुक गई। राशील मोटरसाइकिल आगे बढ़ाकर ले गया और एक काफे की साइड में मोटरसाइकिल को रोककर स्टैंड पर खड़ा कर दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ वो इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। जिसमें वो इमारत के करीब पहुंचा था, उसने एक नौजवान को इमारत के गेट से निकलते और गेट के करीब खड़ी होती मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते देखा। मोटरसाइकिल सवार पर जाने के बाद एक सतून की आड़ में रुका रहा। उसके जाने के बाद वो आगे बढ़ा और फिर गेट के सामने आकर रुक गया। फाटक की जैली खिड़की खुली थी। राशील ने झुककर आगे देखा तो उसे असल इमारत के बरामदे में टैक्सी से उतरकर अंदर आने वाला शख्स नजर आया। राशील तेजी से खिड़की के अंदर दाखिल हुआ और तेजी से एक सतून की आड़ में हो गया। इमारत के सामने कालान खाली पड़ा हुआ था और वहां कोई शख्स न था। राशील चंद लम्हों तक वहीं पर खड़ा जायजा लेता रहा, फिर तेजी से चलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। उसका एक हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर जमा हुआ था। जब वो कमरे के करीब पहुंचा तो अचानक उसने इमारत के सामने का दरवाजा खुलते हुए महसूस किया। वो झपट कर साइड वाली गली में छुप गया। चंद लम्हों के बाद इमारत में से एक कवि हैकल हबशी को बाहर निकलकर फाटक की तरफ जाते हुए देखा और दूसरे ही लम्हे राशील के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट दौड़ने लगी। उस हबशी को वो इमरान के फ्लैट से निकलते हुए पहले भी देख चुका था। उस लिहाज से वो समझ गया था वो बिल्कुल सही जगह पहुंचा है। इमरान यकीनन इसी इमारत में मौजूद होगा। फिर इस ख्याल से कि हबशी कहीं फाटक बंद करके वहां से न चला जाए, उसे देख न ले, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ गली क्रॉस करके इमारत की पुष्ट पर आ चुका था। इमारत की पुष्ट पर कई खिड़कियां थी। ये तमाम खिड़कियां तारीक थी, इसलिए राशील समझ गया कि इन कमरों में कोई मौजूद नहीं है। उसने बारी बारी हर खिड़की को आजमाया और फिर एक खिड़की उसे खुली हुई मिल गई। उसने बड़ी एहतियात से दोनों इसके फट धकेले और चंद लम्हे के बाद अंदर की सनगन लेने के बाद वो खिड़की फुलांग कर कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचकर वो थोड़ी देर के लिए बेहिसोरकत पड़ा रहा। फिर कहीं से कोई आवाज़ सुनाई न दी। फिर जेब से उसने पेंसिल टॉर्च निकाली और बारीक रोशनी में कमरे का जायजा लिया। ये बाथरूम था जिसका दरवाज़ा किसी कमरे में पड़ता था। राशील उस दरवाजे को खोलकर कमरे में पहुंचा तो दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़ा था। उसे कमरे के फर्श पर खड़बड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो तेज़ी से फर्श पर झुक गया। उसने अपना कान ज़मीन पर लगा दिया। आवाज़ें कुछ और ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी थीं। कुछ लोग इस कमरे के ऐन नीचे मौजूद थे। राशील समझ गया कि इस कमरे के नीचे तहखाने में कोई कार्रवाई हो रही है। यकीनन इमरान इसी तहखाने में मौजूद होगा। चुनाचे वो उठकर तेज़ी से उस कमरे से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया जो खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो उसे भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उस दरवाजे की तरफ आ रही थी। राशील ने पेंसिल टॉर्च बुझा दी और दरवाजे से लगकर खड़ा हो चुका था। उसका हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर पर था। जिस्म भी तना हुआ था। कदमों की आवाज़ें तेज़ी से दरवाजे के करीब पहुंची, फिर आगे बढ़ती चली गई। राशील ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और फिर दरवाज़ा खोला और बाहर झांका तो वही हबशी तेज तेज कदम उठाता राहदारी में जाता दिखाई दिया। राहदारी के आखिर में जाकर वो बाएं तरफ मुड़ चुका था। राशील बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। फिर उसने हबशी पीछे अपने देखा कि राहदारी में मुड़कर आगे बढ़ता चला आ रहा है। राहदारी के आखिर में दाएं तरफ सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं, जिनके आखिर में एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा बंद था। राशील सीढ़ियां उतरता चला गया और फिर उसे दरवाजे के ऐन ऊपर एक छोटा सा रोशनदान नजर आया, जिसके नीचे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा शेड बना हुआ था। राशील ने हाथ ऊपर उठाए
اور جیسے ہی اس کے ہاتھ شیڈ پر پہنچے وہ ہاتھوں کے بل اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اطمینان سے شیڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ روشن دان میں شیشے کی بجائے جالی لگی ہوئی تھی۔ راشیل نے جیسے ہی جالی سے آنکھ لگا کر اندر کمرے میں نظر ڈالی تو وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے تو کسی لٹو کی طرح گھوم گیا تھا، کیونکہ سامنے ایک بڑی سی کرسی پر جوانا بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ پکڑے کھڑا تھا، جبکہ وہ حبشی بھی دونوں پہلوؤں پر ریوالور لٹکائے بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ وہ شخص اس کا پیچھا کرتے ہوئے راشیل یہاں تک آیا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ باس آپ خام خواہ اس چکر میں پڑے ہیں، اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں یہ کس طرح طوطے کی طرح بولتا ہے۔ حبشی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، کالے دیو، ہر جگہ طاقت نہیں چلتی، میں اس ٹائپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ مار پیٹ سے کچھ نہیں بتائے گا۔ میں اس نوجوان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا تو اس کی آواز سنتے ہی راشیل سمجھ گیا کہ بولنے والا عمران ہی ہے۔ چنانچہ عمران میک اپ میں تھا، اس لیے اس کو بولنے سے پہلے وہ پہچان نہیں سکا تھا۔